Everyone please go on mute. Background noise आ रहा है थोड़ा. Okay. So we'll start first with the concept of differentiation of a function with respect to another function. ठीक है? Differentiation of one function with respect to another function. देखते हैं कि कैसे करना है. तो मुझे क्वेश्चन देगा कि differentiate sin x with respect to tan inverse x. इस तरह से कुछ बहुत सिंपल है. We'll say let u equal to sin x. तो du dx कितना हो जाएगा? Cos x. And we'll say कि let v is equal to tan inverse x. तो dv dx कितना हो जाएगा? 1/1 plus x का स्क्वायर. Therefore मुझे निकालना है du dv. How do I do that? Du dx divided by dv dx, which is equal to du dx का वैल्यू cos x by dv dx की जगह बैठाएंगे 1/1 plus x square. तो सब ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा. What we get is the answer. Very simple. This concept is known as differentiation of a function with respect to another function. ठीक है? एक और सम करते हैं on this. Suppose u is equal to e to the power x and v is equal to log x. Then what will be du dx? E to the power x. What will be dv dx? 1 by x. So what will be du by dv? E to the power x over 1 by x. मतलब x into e to the power x. ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं differentiation of one function with respect to another function. I repeat, differentiation of one function with respect to another function. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये चीज समझ में आना चाहिए. Now we'll start with second order differentiation. What is the meaning of second order differentiation? इसका मतलब ये होता है कि suppose I have y equal to sin x. So what will be the value of dy dx? अच्छा, dy dx is also written as y1 या फिर f dash x. अगर fx को हम लोग y बोलते हैं तो dy dx can be written as f dash x या y1. So वो कितना होगा? cos x. So similarly, what will be एक और बार differentiation of dy dx? d2y minus sin x. cos x का differentiation मतलब minus sin x. Now can I write this is also equal to minus y? Sin x तो y था ना? Therefore we can y2 equal to minus y. ये बहुत सिंपल सा चीज है. इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स ऑन दिस. अगर y इक्वल टू fx इक्वल टू log x हुआ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y1 या फिर dy dx? 1 by x मतलब x to the power minus 1. तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ d2y dx2 मतलब y2? It will be differentiation of x to the power minus 1, which is equal to minus 1 x to the power minus 2 मतलब minus 1 by x square. Okay. Now let us take another example where y or fx is equal to sin inverse x. तो y1 या dy dx क्या होगा? dy dx will be 1 by root over 1 minus x square.
or you can write this as 1 minus x square के पावर में minus half. So what will be d2y dx2 या y2? It will be n x to the power n minus 1 into ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन मतलब माइनस 2x. दिस इज अकॉर्डिंग टू द चेन रूल. तो ये माइनस माइनस कट के प्लस 2 कट जाएगा. वील हैव x डिवाइडेड बाय 1 minus x square power 3/2. Does everybody understand this? Yes, sir. तो ये हुआ सेकेंड ऑर्डर. यस मैम. एक बार फिर से बताइए. श्योर. देखो y इक्वल टू fx जिसका वैल्यू है sin इनवर्स x. तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई किया और dy dx निकाल दिया. 1/√1 minus x square. उसको हम लोग 1 minus x square का पावर माइनस हाफ ले लेते हैं. ये स्टेप तक क्लियर है? अब अगर मेरा ये y1 का वैल्यू है या dy dx का वैल्यू है, तो what will be y2? इसका डिफरेंशिएशन मतलब n, ये n हो गया, n into x to the power n minus 1 to ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन which is minus 2x. सिंपल चेन रूल. नाउ हम ये 2 और 2 को काटा, माइनस साइन को काटा, बचा x डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट पावर में माइनस 3/2 मतलब डिवाइडेड बाय पावर प्लस 3/2. वो मेरा आंसर. हाँ. चलो एक और करते हैं. मान लो मुझे दिया y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो dy dx क्या आएगा? dx2 क्या आएगा? Did I do it correctly? कुछ गलती हुआ? कर लो ना. n into x to the power n minus 1 into उसका डिफरेंशिएशन. नहीं सर, ठीक है. ये y2 का वैल्यू है. You would notice कि मेरा जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसके पहले वाला और ये वाला जो क्वेश्चन था, उन दोनों केसेस में द कैलकुलेशंस वर बिकमिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बहुत सारा स्क्वायर रूट वगैरह आ रहा है, डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रहा है, तो नॉट द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन, राइट? इन सम्स को करने का एक और टेक्निक होता है. लेट अस लुक एट दैट. अगर y इक्वल टू sin इनवर्स x होगा, प्लीज एवरीवन गो ऑन म्यूट. तो y1 will be 1 by √1 minus x square. ये y1 का वैल्यू. And if this is y1, then can I write after cross multiplication that y1 into √1 minus x square is equal to 1? हाँ या ना? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ हम एक बार आप लोग को प्रीवियस वाला सम का वर्किंग में ले जाते हैं, जब हम ये सम को पहले किए थे. यहां पर देखो, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या था? दिस पावर, दिस चेन रूल, नेगेटिव पावर्स, तो टू मच ऑफ नंबर्स, टू मच ऑफ कैलकुलेशन. यहां पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं द नेगेटिव, द पावर्स, द u by v रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सब को हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं. वी वांट टू कीप द सम एज सिंपल एज वी कैन. तो हम लोग क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर बोथ साइड्स. On squaring both sides, what we get is y1 का square into 1 minus x square equal to 1. हाँ या ना? Yes, sir. हम लोग को इस सम में निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर मतलब y2. तो ऑल वी नीड टू डू इज इस स्टेप के बाद एक बार दोबारा इस स्टेप को डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट दिस स्टेप. व्हाट वी गेट इज अ प्रोडक्ट रूल. ये और ये इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा. आप लोग
अपने अपने कॉपी में ट्राई करो. इन द मीन टाइम आई एम डूइंग इट ऑन द बोर्ड. देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y1 का स्क्वायर एज इट इज यहां पर आ गया, और जो सेकंड वाला ब्रैकेट है मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन इज -2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ y1 स्क्वायर. नाउ y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है. ठीक है. Now let us first understand y1 का डिफरेंशिएशन ये क्यों होता है, फिर I'll come back to this sum. y1 स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो व्हाट वी गेट इज, देखो पावर बाहर आ जाएगा इनटू y1 इनटू y1 का डिफरेंशिएशन, चेन रूल. लेट्स टेक इट विथ अनदर एग्जांपल. अगर मेरे पास ddx ऑफ y स्क्वायर होता तो आंसर क्या होता, 2 इंटू y इंटू dy dx. यस और नो? सिमिलरली अगर मेरे पास y1 का स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू y1 इंटू y1 का डिफरेंशिएशन विच इज y2. इसी चीज को हम एक दूसरा तरह से लिख के दिखाते हैं, ddx ऑफ dy dx का होल स्क्वायर. So what will be the answer? 2 times dy dx into differentiation of dy dx, which is, these two are the same things. ठीक है. Let's go back to this. तो मेरा ये आया as the answer. But what we will notice is कि throughout इस लाइन में ये जो आंसर आया उसमें throughout एक चीज कॉमन जा रहा है. क्या कॉमन जा रहा है, 2y1. तो 2y1 कॉमन लेके हटा दो. What we will get is this is the answer. Clear? Okay. एक और सम करते हैं इसी पैटर्न का. No, I didn't understand the last step. Last step? Okay. Is this part clear? Yeah. Okay. After this, I just took this term common throughout the equation. Yeah. Equation had a 2 common. तो अगर हम ये 2 इधर और इधर काट दें लेट्स से, और y1 इधर और इधर काट दें, So I got it. ठीक है ना? Yeah, I got it. Cool. Thank you. So let us say now the question is y equal to tan inverse x, and I need to do the second order differentiation. So what will be dy dx? 1 by 1 plus x square. Now what should I ideally do? हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए. 1 plus x square into dy dx equal to 1. ठीक है. Differentiating this equation, what we get is 1 plus x square into y1 का differentiation is y2 plus y1 into 2x. ये मेरा आंसर है. यहां से dy dx निकल जाएगा. ठीक है. Let's take one more question. Let's say y is equal to, yes, you're breaking badly. I cannot follow a single word. Also, by the equation.
You need to message me WhatsApp पर. वंशिका, हम लोग इक्वेशन को तब स्क्वायर करते हैं व्हेन देयर इज अ स्क्वायर रूट. इस इक्वेशन में तो देयर इज नो स्क्वायर रूट एट ऑल, सो व्हाई डू वी नीड टू स्क्वायर इट, राइट? स्क्वायर रूट हम लोग तब करेंगे जब इक्वेशन में स्क्वायर रूट होगा. इक्वेशन इज इन अ फॉर्म व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंप्लीफाई, बट इस इक्वेशन में तो देयर इज नो स्क्वायर रूट एट ऑल, सो देयर इज नो नीड फॉर टेकिंग अ स्क्वायर. ठीक है, So have we written y2? वापस से बोलो. So y2 is the differentiation of y1. y2 is the differentiation of y1. Let us create a chain. y का डिफरेंशिएशन होता है y1, मतलब dy dx. y1 का डिफरेंशिएशन होता है y2, मतलब d2y dx2. y2 का डिफरेंशिएशन होता है y3, मतलब d3y dx3. बट हम लोग के लिए यहीं तक इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दिस वी डोंट नीड. Okay, sir. Did I send you any worksheet on differentiation in the group? I didn't, I guess. ठीक है. Let's say y is equal to tan inverse x whole square. इसका d2y dx2 एंड ऑल निकालना है. तो क्या करेंगे? सबसे पहले dy dx निकालो. That is equal to 2 times tan inverse x into tan inverse x का डिफरेंशिएशन मतलब 1 by 1 plus x. Now क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 plus x square को इधर ले जाओ, into y1 is equal to 2 times tan inverse x. Now we need to square both sides in this sum. क्यों? I'll show you why. We'll get 4 times tan inverse x का whole square. ये जो tan inverse x का whole square है, we'll replace this with y. तो क्वेश्चन में y वापस रिटर्न आ गया. तो my equation will become 1 plus x square का whole square into y2 का square, नहीं not y2, y1 का square is equal to 4y. ठीक है. अब इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे मुझे क्या मिलेगा देखते हैं. On differentiating we'll get this 1 plus x square का whole square into y1 square का differentiation plus y1 का square into 2 times 1 plus x square into 1 plus x square का differentiation equal to 4 times y1. पहले देखो तो यहां तक क्लियर हुआ क्या?
वंस दिस इज डन, हम लोग बोथ साइड से 2y1 कैंसिल आउट कर देंगे, लाइक जैसे पहले किए थे। तो फाइनल हुआ। Does anyone have any questions so far? Okay. I'll give everyone a break of 2 to 3 minutes to think over what we have done. Then we'll start So with continuity. ये जो लास्ट बोलो बोलो बोलो। सो ये जो लास्ट स्टेप है इसमें 2x कैसे आया? ये रहा ना, ये वाला x आ गया। अच्छा ओके। ये सब सम्स में ना बहुत सारा टर्म्स होता है, तो थोड़ा केयरफुली देखा करो कि क्या है, क्या बच गया, क्या छूट गया। ठीक है, थिंक ओवर इट फॉर 2 minutes, we'll start with continuity.